افغانستان سے پھر سرحد پار حملہ، پاک فوج کے 3 جوان وطن پر قربان۔ الواڑہ کے مقام پر حملے میں 7 فوجی زخمی بھی ہو گئے۔ 60 سے 70 دہشت گردوں نے باڑ لگانے میں مصروف جوانوں پر حملہ کیا۔ پاک فوج کی مؤثر جوابی کارروائی، کئی دہشت گرد ہلاک، درجنوں زخمی۔ ISPR کے مطابق رکاوٹوں کے باوجود باڑ لگانے کا عمل جاری رہے گا۔ افغانستان اور دبئی سے کتنا پیسہ آ رہا ہے یہ بتائیں ذرا۔ محمد اسماعیل بون زوندون ٹی وی کا PTM سے کیا تعلق ہے؟ TTP آپ کے حق میں کیوں بیان دیتی ہے؟ آپ جا کے ہر اس بندے سے کیوں ملتے ہیں جو پاکستان اور پاکستان کی افواج کے خلاف بات کرتے ہیں؟ افغان سرحد سے پاک فوج پر مسلسل حملے، PTM کی قیادت خاموش کیوں؟ حملوں کی مذمت کیوں نہیں کرتے؟ افغانستان کو دہشت گردوں کو روکنے کا کیوں نہیں کہتے؟ نفرت پھیلانے والے بتائیں سرحدوں پر جا کر کیوں نہیں لڑتے؟ صرف پاک فوج کے جوان ہی قربانیاں کیوں دے رہے ہیں؟ عوامی حلقوں کے سوالات۔ کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دہشت گردی ثابت کرنے کی سازش پھر ناکام۔ بھارت عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل نہ کرا سکا مسعود اظہر کا نام۔ مودی سرکار پلوامہ حملے کے ذمہ داروں کی فہرست سے نام نکالنے پر مجبور۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے مسعود اظہر کا نام اقوام متحدہ کی پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ بھارت کشمیریوں پر مظالم ڈھا رہا ہے، کشمیریوں کی اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ مودی کے پرامن بھارت کے دعووں کے پر خدشے اڑ گئے۔ بھارت میں ایک اور بڑا حملہ، کمانڈو سمیت 15 فوجی ہلاک۔ علیحدگی پسند ماؤ باغیوں نے ریاست مہاراشٹرا میں فوجی قافلے کو نشانہ بنایا۔ 27 سے زائد گاڑیاں بھی نظر آتش کر دی۔ 3 ہفتے کے دوران حملوں میں 25 سے زائد بھارتی فوجی مارے گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت لوگ مشکل میں، تیل کی قیمت اوپر چلی گئی ہے، قیمتیں اگر ہم نہیں بڑھاتے تو ہمارے قرضے بڑھ جاتے ہیں۔ 19 ارب ڈالر کا خسارہ ملا ہے۔ دودھ کی نہریں ہی چھوڑ کے گئے تھے ہمارے لیے۔ ہماری آف شور ڈرلنگ ہو رہی ہے۔ میرا ایمان یہ ہے کہ انشاءاللہ اس میں سے بڑا ذخیرہ نکلے گا گیس کا۔ پیٹرول کی قیمت نہ بڑھائی تو ملک پر قرضہ بڑھ جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں حکومت کو 19 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ملا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے دودھ کی نہریں چھوڑ کر نہیں گئے۔ مانتے ہیں کہ مہنگائی ہوئی مگر پہلے سے زیادہ نہیں۔ آف شور ڈرلنگ کا نتیجہ آنے میں 2 ہفتے رہ گئے۔ امید ہے گیس کے بڑے ذخائر ملیں گے۔ برطانیہ میں تعینات نئے ہائی کمشنر نفیس زکریا کا برمنگھم کونسلیٹ کا پہلا دورہ۔ نفیس زکریا کی برٹش پاکستانی MPA، کونسلرز، خواتین کی تنظیموں اور صحافیوں کے وفد سے ملاقات۔ برمنگھم کونسل خانہ اوورسیز پاکستانیوں کی خدمت میں دن رات کوشاں ہے۔ نفیس زکریا کا اظہار خیال۔ سرسبز پاکستان، ہنستا کھیلتا پاکستان، حقیقی پاکستان، پاکستان کا مثبت چہرہ دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے سوشل میڈیا بلاگرز کی ڈسکور پاکستان مہم جاری۔ گلگت سے گوادر تک مقامی پاکستانیوں کا بین الاقوامی بلاگرز کو دل و جان سے خوش آمدید۔ ڈبلنگ میں امیگرینٹس کے بڑھتے مسائل کے حل کے لیے امار علی کی جانب سے ایونٹ، شیڈو منسٹر فار جسٹس سمیت وکلا اور MRCI کے نمائندگان کی شرکت۔ شرکا کا آئرلینڈ کی امیگریشن پالیسی میں ریفارمز کا مطالبہ۔ شیفیلڈ میں PTI کے عہدیداران کا اجلاس، پارٹی کے سابقہ عہدیداران سمیت ممبران کی شرکت، آئندہ ہونے والے انٹرا پارٹی الیکشن پر مشاورت۔ اور کیٹ واک میں کیٹ کی انٹری، مراکش میں رنگا رنگ فیشن ویک، خوبرو ماڈلز ریمپ پر جلوہ گر ہوئی تو ایک بلی بھی ان میں شامل ہو گئی۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन के आगाज में धरती मां पर जान कुर्बान करने वाले पाक फौज के बहादुर सपूतों को कौम का सलाम। जर्री जवानों ने अफगान सरजमीन से दहशतगर्दों का बड़ा हमला पसपा कर दिया। फायरिंग के तबादले में लांस नाइक अली, लांस नाइक नजीर और सिपाही इमदादुल्लाह जामे शहादत नोश कर गए। पाकिस्तान में अमन, दुश्मनों को एक आंख ना भाया। अफगान सरजमीन से फिर दहशतगर्दों का हमला, पाक फौज के 3 जवान शहीद, 7 जख्मी हो गए। सरहदों के मुहाफिजों का मुंह तोड़ जवाब, मुतअद्दिद दहशतगर्द मारे गए। अफगानिस्तान से 60 से 70 दहशतगर्दों ने शिमाली वजीरिस्तान के सरहदी इलाके लवाड़ा में दरअंदाजी की। कौम के बहादुर सपूतों ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए हमला पसपा और मुतअद्दिद दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। कई जख्मी हुए। फायरिंग के तबादले में लांस नाइक अली, लांस नाइक नजीर और सिपाही इमदादुल्लाह जामे शहादत नोश कर गए। ISPR का कहना है कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज और हुकाम अपने इलाके में कंट्रोल मौसर बनाकर पाकिस्तान की काविशों को तकवीयत दें और अपनी सरजमीन का पाकिस्तान मुखालिफ इस्तेमाल रोकें। दहशतगर्दों के बार बार हमलों, मौसम की सख्तियों के बावजूद पाक फौज बहादुरी के साथ पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने में दिन रात मसरूफ है। बाड़ लगाने का कितना काम मुकम्मल हो चुका है, हमला किस मकाम पर किया गया और अब तक ऐसे कितने हमले हो चुके हैं, ये आपको ग्राफिक्स की मदद से बताएंगे। अपनी सरहदों को महफूज बनाने के लिए और दहशतगर्दों की तखरीबकारियों से पाकिस्तानी शहरियों को बचाने की गर्ज से पाक फौज दिन रात सरहदों पर काम कर रही है। नाजरीन, पाक अफगान बॉर्डर जिसका शुमार दुनिया की तवील तरीन और मुश्किल तरीन सरहदों में होता है, जिसे ड्यूरेंट लाइन भी कहते हैं। ये तकरीबन 2611 किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसमें पहाड़ भी हैं और दुश्वार गुजार रास्ते भी शामिल हैं। नाजरीन, रियासत पाकिस्तान की जानिब से यह फैसला किया गया कि ये जो 2611 किलोमीटर अफगान सरहद है, इस पर बाड़ लगाई जाए ताकि सरहद पार से दहशतगर्दों के हमलों और दरअंदाजी को रोका जा सके। पाक फौज की जानिब से सरहद पर बाड़, कलों और चौकियों की तामीर का काम तेजी से जारी है। अब तक 911 किलोमीटर पर बाड़ की तंसीब का काम मुकम्मल हो चुका है। हम अपने नाजरीन को यह भी बताते चलें कि अब तक पाक फौज के काम में खलल डालने के लिए सरहद पार से 150 दहशतगर्द हमले हो चुके हैं। यहाँ ये बात भी गौरतलब है कि अफगान हुकूमत की जानिब से सरहदों को महफूज बनाने में ताउन की बजाय मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं। लेकिन हमारी पाक फौज दहशतगर्दों की तखरीबकारियों को नाकाम बनाते हुए अपना काम जारी रखे हुए। नाजरीन, ये है शुमाली वजीरिस्तान की तहसील दत्ताखेल, जिसका इलाका अलवाड़ा, जहां पाक फौज बाड़ लगा रही थी कि सरहद पार से 60 से 70 दहशतगर्द आते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। पाक फौज ने दहशतगर्दों के हमले को न सिर्फ बुरी तरह पसपा किया, बल्कि मुतअद्दिद दहशतगर्द जहन्नुम वासल भी हुए और लाशें छोड़कर वापस अफगानिस्तान भाग गए। नाजरीन, अलवाड़ा का इलाका अफगान सूबे पख्तिका की सरहद पर वाक़ है और दहशतगर्दों ने पख्तिका के इलाके मरगा से हमला किया था, जो अलवाड़ा के साथ सरहद के दूसरी जानिब है। और नाजरीन, अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के बार बार हमलों पर जहां पूरी कौम सरापा एहतजाज है, ऐसे में PTM की क़यादत की ज़बान को ताले लग गए हैं। दहशतगर्दी के इस वाक़े की मजम्मत के लिए किसी ने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। अफगानिस्तान और दुबई से कितना पैसा आ रहा है ये बताएं जरा। मोहम्मद इस्माइल बोन जोनदौन टीवी का PTM से क्या ताल्लुक है? TTP आपके हक में क्यों बयान देती है? आप जाके हर उस बंदे से क्यों मिलते हैं जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ बात करते हैं? खुद को एंटी टेररिस्ट तंजीम कहलवाने वाली PTM अफगानिस्तान से बार बार पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमलों पर खामोश क्यों है? दहशतगर्दों ने सरहद पार से कई बार पाक फौज पर हमले किए, मगर PTM की क़यादत की जुबान से आज तक मजम्मत का एक लफ्ज भी नहीं निकला। जब पाक फौज का जवान शहीद होता है तो इस तंजीम की जुबान पर ताले क्यों लग जाते हैं? PTM की इस मुजरिमाना खामोशी पर कुछ सवालात तो बनते हैं। PTM की क़यादत अफगानिस्तान को दहशतगर्दी
रोकने का क्यों नहीं कहती? पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, पीटीएम के करता धरता इस मजमूम अमल की मजम्मत क्यों नहीं करते? पीटीएम वाले यूं तो मुल्क के नौजवानों को वरगला रहे हैं, क्या इन्हें ये नजर नहीं आता कि मादरे वतन के लिए कुर्बानियां कौन दे रहा है? पीटीएम के 3 लोग जाकर दिफा क्यों नहीं करते? दहशत गर्दों को रोकने के लिए किसी किस्म की तरगीब क्यों नहीं देते? वतन तो हम सबका है, दहशत गर्द सरहद पार से सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते हैं, पाक आर्मी के जवान ही क्यों कुर्बानियां दे रहे हैं? अफगानिस्तान से पश्तून तहफ़्फ़ुज़ तहरीक नामी गिरोह को मुसलसल ताउन जारी है, क्या इसीलिए पीटीएम की क़यादत हर वक्त अफगानिस्तान की तारीफ करती रहती है? नाज़रीन, एक जानिब दुश्मन का एक मंसूबा नाकाम हुआ तो दूसरी जानिब कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को दहशतगर्दी से जोड़ने की भारतीय साजिश भी नाकाम हो गई। जी बिल्कुल, अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को तस्लीम कर लिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मसूद अजहर का नाम अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया। ताहम पाकिस्तान ये इक़दाम 2002 में ही उठा चुका। आलमी सतह पर भारत की सुबकी का सिलसिला जारी, झूठ बेनकाब होने पर मोदी सरकार का एक और यू टर्न, पुलवामा मामले से मसूद अजहर का नाम निकाल दिया। चीन ने 13 मार्च को भारतीय मां पर अक़वाम मुत्तहिदा में दी गई दरख्वास्त पर टेक्निकल होल्ड लगाया था। झूठ का पर्दाफाश होने पर भारत ने राह फरार इख्तियार कर ली। मुंह की खाने के बावजूद मोदी सरकार साजिशों से बाज न आई। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी ने जैश ए मोहम्मद के सरबराह मसूद अजहर को पाबंदी की फहरिस्त में शामिल कर दिया। मौलाना मसूद अजहर और उनकी तंजीम जैश ए मोहम्मद को पाकिस्तान ने 2002 में ही काला दम करार देते हुए उन पर पाबंदियां आयद कर दी थी। पाकिस्तान की जानिब से मौलाना मसूद अजहर की बैरून मुमालिक जाने पर पाबंदी थी, उनके बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए थे और ना ही वो हथियार रख सकते थे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की कमेटी ने भी मौलाना मसूद अजहर पर वही पाबंदियां आयद की हैं जो पाकिस्तान 2002 में लगा चुका है। सलामती काउंसिल की कमेटी की जानिब से पाकिस्तान पर किसी किस्म की कानूनी पाबंदी आयद नहीं की गई। भारतीय मीडिया मोदी सरकार की सिफारती सतह पर बदतरीन सुबकी पर भी शादियाने बजा रहा है। नाज़रीन, अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तानी सियासत की, जिसमें आज एक बार फिर गूंज सुनाई दी है कि किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान एक बार फिर अपोजिशन पर बरस पड़े। कहते हैं ये सब पैसा बचाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। इमरान खान ने शरीफ फैमिली के बैरून मुल्क इलाज पर भी उंगली उठा दी। नवाज शरीफ कह रहे हैं कि जी इलाज करवाने के लिए उनको बाहर जाने दिया जाए। इसहाक डार भी बाहर इलाज करवाने के बहाने, उसके बेटे भी बाहर, शहबाज शरीफ का इलाज बाहर, वो हमजा शरीफ की फैमिली बाहर, दमाद वो अली इमरान वो बाहर इलाज करवाने के लिए। पहले 12 साल में एक फैक्ट्री से 30 फैक्ट्रियां बना ली हो। फिर 2008 में शहबाज शरीफ के खानदान ने आते साथ ही 11 कंपनीज बना ली हो। वो एक हॉस्पिटल नहीं बना सके जिधर उनका यहाँ इलाज हो सके। वो जो लोग जेलों में हैं पाकिस्तान के, कितने लोग जेलों में बेचारे मर जाते हैं, उनका इलाज नहीं होता, तो क्या उनका हक नहीं है बाहर जाने का? जमहूरियत बचाने के लिए सबने इकट्ठे होना है, और जमहूरियत बचाने का मतलब ये है कि अपनी चोरी बचाना। ये सारा प्रेशर करते हैं, असेंबली में शोर मचाते हैं, मकसद एक है किसी तरह इनको एनआरओ मिल जाए। जो मर्जी इन्होंने करना करें, मैं अल्लाह को जवाब दूं, मैं किसी सूरत हम एनआरओ नहीं दे सकते। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस जकरिया ने बर्मिंघम काउंसलेट में ब्रिटिश पाकिस्तानी एमपी, काउंसलर्स, खवातीन की तंजीमों और सहाफ़ियों के नुमाइंदा वफ्द से मुलाकात की। इस मौके पर उन्हें बर्मिंघम में आबाद ओवरसीज कम्युनिटीज़ के मसाइल और काउंसलेट की कम्युनिटी के लिए खिदमात से आगाह किया गया। एमपी खालिद महमूद और साबिक लॉर्ड मेयर काउंसलर शफीक शाह ने ओवरसीज कम्युनिटी की तर्जुमानी करते हुए हाई कमिश्नर को कम्युनिटी के मसाइल से आगाह किया। इसी पर देखिए आबिद काज़मी की ये रिपोर्ट। बरतानिया में तैनात होने वाले नए पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया ने बर्मिंघम काउंसलेट का पहला दौरा किया। इस दौरान ओवरसीज पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी के नुमाइंदा वफद ने भी उनसे मुलाकात की।
मुलाकात में MP खालिद महमूद, साबिक लॉर्ड मेयर काउंसलर शफीक शाह, काउंसलर जनरल अहमद इस्माइल, वाइस काउंसलर सरदार अहमद, नए मुंतखब लॉर्ड मेयर काउंसलर अजीम, रुबीना खान और दीगर ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तर्जमानी करते हुए मुख्तलिफ इशूज़ से हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को आगाह किया। इस मौके पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस जिक्री ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि बर्मिंघम में पाकिस्तान का सबसे बड़ा कौंसल खाना है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खिदमत में दिन रात कोशा है। There are many other areas जिसके साथ हम जिन डोमेन्स के अंदर हमारा इनके साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप, हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है। तो कोई ब्रेक्सिट के आने के बाद या अनाउंस होने के बाद हमारे ना ट्रेड में कोई फ़र्क आया ना इकनॉमी। हाँ, ये ज़रूर है कि ये एक चैलेंज है एज़ फार एज आई एम कंसर्न, एज़ फार एज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज कंसर्न, एज़ फार एज जनरल एक व्यू इज़ कंसर्न कि जहाँ चैलेंजेस होते हैं वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। हम अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं और इस वक्त अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि पूरी दुनिया का फोकस जो है वो एशिया की तरफ शिफ्ट हुआ है और यही वो चीज़ है, यही वो कैंपेन है, यही वो अवेयरनेस है कि जो हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और इनको वो एरियाज़ आइडेंटिफाई करके दे रहे हैं जहाँ पर दोनों के लिए मिल के काम करने में फ़ायदा है। बर्मिंघम कॉन्सुलेट के दौरे के दौरान पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस जिक्री और MP खालिद महमूद ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि बर्मिंघम के दौरे का मकसद अपनी कम्युनिटी के साथ मेल मुलाकात और उनके मसाइल से आगाही हासिल करना है। बर्मिंघम में एक बहुत बड़ी तादाद कम्युनिटी की मौजूद है, इसलिए ये ज़रूरी था कि मैं तमाम उन जगहों पर जाऊँ जहाँ पर हमारी कम्युनिटी मौजूद है। बर्मिंघम मैंने प्लान इसीलिए किया था ताकि मैं कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं, उनके साथ मुलाकात करके आने वाले वक्तों के लिए हम कोई लाएमल तय कर सके कि हमने कैसे जो है वो हमारी कम्युनिटी की जो स्ट्रेंथ है उसको यूटिलाइज कर सके। कॉन्सुलेट के दौरे के बाद पाकिस्तानी हाई कमिश्नर बर्मिंघम टाउन हॉल में कम्युनिटी के मुंतखब नुमाइंदों से मुलाकात के दौरान पाकिस्तान में टूरिज्म के फरोग पर इजहार ख्याल भी करेंगे। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। लेबर पार्टी के MP और शेडो मिनिस्टर बराए यूरोप खालिद महमूद ने कहा है कि ब्रेक्जिट होना मुश्किल लग रहा है। अगर हो गया तो वर्कर्स की कमी पूरी करने के लिए कॉमनवेल्थ ममालिक से राबिता करना होगा। ब्रेक्जिट पार्टी बनने का ज्यादा नुकसान कंजर्वेटिव को होगा। नुमाइंदा 92 न्यूज़ आबिद काज़मी के साथ गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, आप भी सुनिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ। MP खालिद महमूद साहब हैं, लेबर पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ क्योंकि यूरोपियन इलेक्शन आ रहे हैं तो हम मुनासिब समझते हैं कि इनसे पूछें कि जो यूरोपियन इलेक्शन है उसमें हिस्सा लेने के लिए इनकी पार्टी के उम्मीदवार भी हैं, मौजूद हैं और इसके बाद क्या सिचुएशन होगी। खालिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया 92 को टाइम देने का। जी यहाँ जी जो अभी यूरोपियन इलेक्शन है उससे पहले 2 मई को हमारे लोकल इलेक्शंस आ रहे हैं और मैं समझता हूँ उसमें हमारे लिए बहुत अच्छी पोजीशन है जो लेबर पार्टी ले रही है क्योंकि हमारी पोजीशन जो ब्रेक्सिट पे है वो काफ़ी लोगों के हक में है और वो चाहते हैं कि जो ऑलरेडी एग्रीमेंट्स हमारे साथ हैं, यूरोपियन एग्रीमेंट्स हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स ऑलरेडी हैं, कस्टम यूनियन एग्रीमेंट्स हैं, वही रहें, जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो हमारे वर्कर्स राइट्स हैं वो रहें और इसलिए लेबर पार्टी की काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट हो रही है। कंजर्वेटिव गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल दो पा है, अभी उसको समझ नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो 3-4 दफ़ा वोट डाल चुकी है पार्लियामेंट में कि उसकी डील पास हो, वो नहीं हो रही है, उसकी पार्टी के खुद लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और जो यूरोपियन इलेक्शन जैसे आपने कहा है वो आ रहे हैं, उसमें अभी ब्रेक्सिट पार्टी एक नई शुरू हुई है। जो नाइजल फराज यूकिप के लीडर थे उन्होंने नई पार्टी बनाई है, तो उससे भी मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा इनको नुकसान होगा क्योंकि इनको कोई पोजीशन है ही नहीं कि एक मुल्क का दफा कैसे करें, वो सपोर्ट कैसे करें मुल्क की, वो डिफेंड कैसे करें, तो वो नहीं कर रही हैं, तो लोग उनको बड़ा कमज़ोर समझ रहे हैं। अच्छा ये बताएं, जो नई पार्टी आई है उसकी वजह से क्या कंजर्वेटिव को ज़्यादा नुकसान या लेबर को भी होगा? आई थिंक सबसे ज़्यादा जो होगा कंजर्वेटिव पार्टी को होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो जो राइट विंग पॉलिसीज़ हैं कुछ इलाकों में थोड़ा सा फ़र्क हमें पड़ेगा। ये होता है, नेचुरली होता है कि एक नई पार्टी आती है तो कुछ लोग जो पार्टी लेबर पार्टी में हैं जो सपोर्ट करते हैं ब्रेक्सिट की, पर वो बहुत कम है, लेबर पार्टी में बहुत कम है। मेजॉरिटी जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी में है, तो उनको मैं समझता हूँ इस हिसाब से बड़ा नुकसान होगा। तो आप क्या समझते हैं कि ब्रेक्सिट होगा या नहीं? अभी सब डोमोडोल में है। गवर्नमेंट कुछ ख़ास तरीके पे नहीं आगे जा रही है, वो कोशिश कर रही है लेबर पार्टी से बात करने के लिए। लेबर पार्टी कह रही है कि हमारे जो इश्यूज़ हैं, स्पेशली जो है कस्टम्स यूनियन होनी चाहिए, हमारे जो इश्यूज़ हैं कि वर्कर्स राइट्स होने चाहिए, ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स जो हैं वो रहने चाहिए, उस हिसाब से अगर चलेंगे हमारे साथ तो हम चलना चाहते हैं। हम ये चलना चाहते हैं कि लोगों के हक में हम करना चाहते हैं, जो यूरोपियन यूनियन के हमारे ऑलरेडी एग्रीमेंट्स हैं उसके साथ चले हैं। ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर इस वक्त भी मुश्किल में है या निकल आई है मुश्किल से? नहीं, अभी भी मुश्किल में है, बस वो उसको पता नहीं क्या खाया हुआ बेचारी ने कि वो
دیکھ رہی ہے کہ اتنی ڈیفیٹس ہو چکی ہیں. یہ پہلی گورنمنٹ ہے جسے ہاؤس آف کامنز میں نو کانفیڈنس کی ووٹ ان کے پوری گورنمنٹ کو ملی ہے. ان کے ساتھ وہ جتنی بھی ووٹس گئی ہیں خلاف گئی ہیں, ان کی پارٹی خود سے خلاف ووٹ کر رہی ہے. اور جیسے ڈیوڈ کیمرن نے جب ریفرینڈم کیا تھا تو وہ ہار گیا تھا تو اس نے پیک ان کر لیا تھا, یہ نہیں کر رہی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ متوقع ہیں کہ الیکشن اسی سال ہوں گے یا کہ آگے چلا گیا, اس کی مدت پوری ہو؟ آج بڑی مشکل ہے کہ مدت پوری ہو. 22 میں جو ہے وہ مدت پوری ہوتی ہے, تو جب تک یہ بریکسٹ پہ آگے نہیں چل سکی, جو نہیں چل سکی ہے, اور اس میں ہماری اور جو ایشوز ہے, نیشنل ہیلتھ سروس جو ہے, ایجوکیشن جو ہے, اور لوکل اتھارٹیز کی ایشوز ہیں, فنڈنگ ہے, پولیس ہے, وہ سب کوئی نہیں چل رہا ہے. تو جب تک یہ ایشو کو فارغ نہیں کریں گے, تو یہ فارغ نہیں کر پائیے, اس حساب سے لوگوں کو دیکھنا پڑے گا کہ اس ملک کو آگے کرنے کے لیے کیا اور گورنمنٹ آنی چاہیے کہ نہیں. اچھا فرق کیا لیبر کی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو کیا آپ کیسے ڈیل کریں گے, کیا آپ کا کیا رکھتے ہیں؟ ہمارا ہے کہ جو ہم نے ان کو بھی نئے کو بھی خط بھیجا ہے, یورپین یونین کو بھی خط بھیجا ہے, وہی ایشوز جو میں کہہ چکا ہوں کہ وہ ہے ٹریڈ کسٹمز یونین ہے, جو ہے ان کی ہیومن رائٹس ہیں, ورکرز ٹائم ڈائریکٹیو ہیں, اور کورٹ یورپین ہیومن رائٹس ہیں. ان کے حساب سے اگر ہم چلیں پارٹی کے, وہ تو یورپین یونین کہتی ہے ہم بات کر سکتے ہیں لیبر پارٹی سے, پر یہ نہیں کرنا چاہتی ان ایشوز پہ. پاکستان کا مثبت اور خوبصورت امیج دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے 8 ممالک کے سوشل میڈیا ولاگرز کی 10 روزہ ڈسکور پاکستان مہم کامیابی سے جاری ہے. گلگت سے گوادر تک مقامی پاکستان نے بین الاقوامی بلاگرز کو دل و جان سے خوش آمدید کہا اور بے حد پذیرائی بخشی. گوادر میں پراپرٹی ڈیولپر CPIC کے CEO ذیشان شاہ ان بلاگرز کی قیادت کر رہے ہیں. بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی رپورٹ دیکھیے. سرسبز پاکستان اصل پاکستان, ہنستا کھیلتا مسکراتا پاکستان, حقیقی پاکستان. دنیا بھر کے سیر سپاٹے کرتے مشہور ولاگرز اور سوشل میڈیا پر زیادہ فالوئنگ رکھنے والے امریکہ, کینیڈا, برطانیہ, بیلجیم, رومانیہ اور پاکستان کے ولاگرز ان دنوں پاک سرزمین کا ہر حسین مقام دیکھ رہے ہیں. عالمی ولاگرز کی ٹیم CPIC کی میزبانی میں ان دنوں پاکستان کے دورے پر ہے. 10 روز تک ان ولاگرز نے چترال, گلگت سے لے کر کاشغر اور گوادر تک سفر کے دوران پاکستان کے مختلف علاقوں کے کلچر اور ثقافت کو دیکھا اور انتہائی خوبصورت انداز میں پاکستان کا حسن سوشل میڈیا پر پیش کیا. دنیا بھر میں ان کے لاکھوں فالوورز نے پاکستان کا حقیقی اور خوبصورت چہرہ دیکھ کر نہ صرف حیرت کا اظہار کیا ہے بلکہ لاکھوں غیر ملکی شہری پاکستان کا دورہ کرنے کے لیے بھی بےتاب ہیں. پورا جو گلگت بلتستان کا علاقہ وہ پورا گھومیں گے ایز اے گروپ آف سوشل میڈیا انفلوئنسرز. یہ 8 لوگ ہیں اس ٹرپ کے اندر, اینڈ یہ لوگ اوریجنیٹ کرتے ہیں فرام کینیڈا, فرام دا UK, فرام رومینیا اینڈ فرام آسٹریلیا. تو پورے دنیا ہم نے بیسکلی کور کیا, پورے دنیا سے ہم لوگ لے کے آ رہے ہیں پاکستان, اور یہ جا کے پوری دنیا کے اندر اپنا میسیج دیں گے اور دکھائیں گے کہ اصل پاکستان کیا ہے. CPIC کے چیئرمین ذیشان شاہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے دوسری مرتبہ بین الاقوامی سطح پر مشہور لوگوں کو پاکستان کا دورہ کروا رہے ہیں, جس کی بے حد مقبولیت خوشائند ہے. پوری دنیا سے ہم 8 سوشل میڈیا انفلوئنسر لے کے گئے تھے, فرام دا UK, فرام کینیڈا, فرام اٹلی, پولینڈ, نیوزی لینڈ, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا کام ہے پوری دنیا گھومنا, اور ان کی ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز میں فالوئنگ ہے سوشل میڈیا پہ, صرف اس لیے کہ یہ پوری دنیا گھومتے ہیں. 365 ڈیز یہ پوری دنیا گھوم رہے ہوتے ہیں ایز ٹریولرز. تو ہم نے ان کو ایک گروپ ان کا لے کر گئے ہم پاکستان, اور پاکستان کے ناردرن ایریاز میں ان کو گھمایا. ہم گئے تھے چترال کی طرف, اینڈ چترال, کلاش, آیون, جو ساری وہاں کی ویلیز ہے وہ پورا گھومے, پھر کراچی آئے, گوادر آئے. اور یہ جو ٹرپ تھا ہم نے پھر اس کو ریلیز کیا اکراس آل سوشل میڈیا پلیٹفارمز, آن YouTube, آن Facebook, اور اس کے جو ہے ملینز کے اندر ویوز آئے. تو یہ جو فارنرز تھے جب یہ پاکستان گھوم رہے تھے, انہوں نے ایک پرسپیکٹیو دکھایا دنیا کو کہ پاکستان ایک سیف کنٹری ہے, اور ایک پاکستان کا سافٹ امیج اور ریئل امیج دکھایا. بلکہ میں سافٹ امیج بھی نہیں کہنا چاہوں گا, میں کہنا چاہوں گا پاکستان کا ریئل امیج دنیا کو دکھایا کہ پاکستان کے لوگ کتنے فرینڈلی ہیں, اور پاکستان کے جو ہاسپٹیلٹی ہے وہ کتنی اچھی ہے کہ دنیا میں ایسی ہاسپٹیلٹی اور کہیں بھی نہیں ہے. ذیشان شاہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کا دنیا بھر کے سامنے حقیقت پر مبنی مثبت چہرہ دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے تمام اخراجات ان کی کمپنی برداشت کر رہی ہے. مگر آئی مسٹ ایڈ یہ کہ یہ پورا پرائیویٹلی فنڈڈ انیشیٹو ہے. میں خود
میری جو آرگنائزیشن ہے CPIC, ہم خود اس کو فنڈ کر رہے ہیں پرائیویٹلی. اس کے اندر کوئی مطلب سرکار کا یا حکومت کا کوئی پیسہ نہیں ہے جو ہمیں سپورٹ مل رہی ہے. ہمیں الحمدللہ پاکستان فوج کی طرف سے تعاون ہوتا ہے. دا آرم فورسز ہیلپ اس, وہ ان ٹرمز آف فیسیلیٹیشن. آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو تھینک دا پاکستان آرمی فار ہیلپنگ اس فیسیلیٹیٹ. بٹ اوور آل جو اس کی جو فنڈنگ ہے یہ ہم خود آرگنائز کرتے ہیں, اور یہ بس ایک ایز بینگ اے پیٹریوٹک آرگنائزیشن پاکستان کو پروموٹ کر رہے ہیں. ہم ریل اسٹیٹ ڈیولپرز ہیں, ہمارا پاکستان میں ریل اسٹیٹ کا کام ہے, مگر وہ ریل اسٹیٹ مطلب کہ ہنزا میں یا گلگت میں یا چترال میں تو نہیں ہے. تو یہ بس ایز اے پیٹریوٹک آرگنائزیشن اور سپورٹنگ دا گورنمنٹس ویژن, سپورٹنگ پرائم منسٹر عمران خان's ویژن, ہم اس لیے یہ کر رہے ہیں. ولاگرز نے پاکستانی ٹور کو اپنی زندگی کا شاندار تجربہ بھی قرار دیا. مارک وائن, ٹریور جیمز میں دنیا کے کئی نامور ولاگرز پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں, جہاں پاکستانی ثقافت اور لذیذ کھانوں نے دیکھنے والوں کو حیران کر دیا ہے. سوشل میڈیا پر عالمی ولاگرز کی یہ ویڈیوز لاکھوں کروڑوں افراد دیکھ چکے ہیں. آئرلینڈ میں امیگرینٹس کے بڑھتے ہوئے مسائل کے حل کے لیے لوکل کونسل الیکشن کے امیدوار عمار علی نے ڈبلن میں ایک ایونٹ کا انعقاد کیا, جس میں مہمان خصوصی شیڈو منسٹر جم اوکلاگن کے ساتھ وکلاء اور سوشل ورکر سے مختلف سوالات کے جواب دیے. مزید تفصیلات فیصل مرزا کی اس رپورٹ میں. آئرلینڈ میں رہنے والے تارکین وطن کا سب سے بڑا مسئلہ ویزا اور پاسپورٹ میں تاخیر ہے. ان مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے لوکل کونسل الیکشن کے امیدوار عمار علی نے ڈبلن میں ایک ایونٹ کا انعقاد کیا, جس کے مہمان خصوصی فینا فال کے ممبر اسمبلی شیڈو منسٹر فار جسٹس جم اوکلاگن تھے. تقریب میں وکلاء اور MRCI کی نمائندگان کو بھی مدعو کیا گیا تھا. اس موقع پر لوگوں کی بڑی تعداد نے اپنے امیگریشن سے متعلقہ مسائل پر وکلاء اور شیڈو منسٹر سے کھل کر بات کی. آج کا ایونٹ جو ہے یہ ہماری کمیونٹی کی انٹیگریشن کے لحاظ سے بہت اچھا رہا ہے, کیونکہ ہم نے جو یہ شیڈو منسٹر ہے مطلب اس کو بتا سکے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کو کیا مسائل درپیش ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ کچھ نہ کچھ کریں گے, آٹے میں نمک کے برابر ہو جائے گا تو یہ زیادہ بہتر ہے, اس لیے ہونا چاہیے ایسا. تو مین پرپس آف یہ ایونٹ کے تھے, جو میری کانسٹیٹوئنسی ہے اس میں بہت مائیگرینٹس آتے ہیں, ان کے ایشوز پارلیمنٹیرینس کے سامنے ریز کرنے کے لیے. امیگریشن جو مائیگرینٹس کا سب سے کور ایشو ہے, جب تک ہم اس کو ایڈریس نہیں کریں گے ہم مائیگرینٹس کی کوئی بھی انٹریکشن ایکٹیویٹیز نہیں کروا سکتے, کیونکہ لوگ اتنے بزی ہوتے ہیں اپنی امیگریشن کے کیسز میں, ٹینس میں وہ. تو یہ ایک اپرچونیٹی ہے 24 مئی کو کہ مائیگرینٹس آئیں, ایک مائیگرینٹ کو الیکٹ کریں اور اپنی وائس ادھر ان عواموں تک پہنچائیں. I'm really happy to be here tonight and representing the campaign. It was a great issue being raised about the migrant. New Irish migrant communities. We're delighted to have them, and the meeting this evening was really vibrant and it was very instructive and important for me because I got a lot of information from the immigrant community as to the issues that concern them in this country. There are issues primarily about immigration and the process of applying for visas, but I got a message loud and clear. شرکاء کا مطالبہ تھا کہ آئرلینڈ کی امیگریشن پالیسی میں ریفارمز کی ضرورت ہے. بے معنی قسم کی سختیوں, خاص طور پر ایئرپورٹ پر کیے جانے والے سوالات اور ٹیکسی ڈرائیورز کو روک کر سوالوں کی بوچھاڑ کی روک تھام ہونی چاہیے. تقریب کے اختتام پر شیڈو منسٹر نے یقین دلایا کہ وہ امیگریشن سے متعلقہ وزیر سے بات کریں گے اور ان مسائل کے حل کے لیے کوششیں کریں گے. عمار علی نے آج کے یہاں ایونٹ میں امیگرینٹس کے جو ایشوز ہیں ان کو ریز کیا اور کوشش کی کہ تمام جو حاضرین تھے وہ اپنے اپنے سوالات جو ہیں ان کے جوابات شیڈو منسٹر سے حاصل کریں. بہت اچھا ایونٹ رہا اور امید کی جا رہی ہے کہ عمار علی اس ایونٹ کی بنیاد پر امیگرینٹس کے اندر ایک اپنی اچھی ویلیو بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور 25 مئی کو ایک اچھا رزلٹ نکالیں گے. فیصل مرزا 92 نیوز ڈبلن آئرلینڈ. بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا. آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ابرار الحق نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان بے بس لوگوں کی امید ہیں. ہمیں ملک کی معیشت برے حالات میں ملی ہے. تحریک انصاف کی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ عوام کو جلد از جلد ریلیف دیا جائے. وہ لندن میں میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے. انہوں نے مزید کیا کہا جانتے بیورو چیف UK غلام حسین اوان سے. جس حالت میں اکانومی ہمیں دے کر گئے تھے, میں تو اسی طرح کے حالات توقع کر کے بیٹھا ہوا تھا اور بدقسمتی سے جیسے کہتے ہیں نا گھر کو جاتے ہوئے آگ لگا کے گئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ان بس کے بخاؤ, تو ان کو ہم بتا رہے ہیں کہ بسیں گے بھی تو بساواں گے بھی انشاءاللہ.
लेकिन इंशाल्लाह फायर फाइटिंग से भी हम इसको गुजर रहे हैं। नीयत हमारी अच्छी है, ये सारी कौम को पता है। उन जैसी नीयत नहीं है, खाना किसी ने नहीं है। वक्त देना पड़ेगा आपको। 5 साल के लिए मुंतखब हुए हैं तो 8 महीने 10 महीने, मुश्किल अभी 1 साल 2 साल शायद और भी हो, लेकिन ये उनके जो किया धरा है उसके नतीजे में हो रहा है ये सब कुछ। तो मैं लोगों से भी ये कहूँगा कि हमारे लिए दुआ करें। जब इंसान की नीयत ठीक होती है तो अल्लाह की ज़ात भी बरकत डालती है। हमें उम्मीद है अल्लाह की बरकत ज़रूर आएगी और हालात बेहतर। कहा जा रहा है कि जो हारे हुए उम्मीदवार हैं इमरान खान साहब, उनको मशीर बनाकर पार्लियामेंट की तौहीन कर रहे हैं, क्या कहना? नहीं, ये पार्लियामेंट की तौहीन बिल्कुल भी नहीं है। पार्लियामेंट का इजलास होता है और कुछ भी मावराए आइन नहीं हो रहा। जब लोग परफॉर्म पार्लियामेंट से आए हुए मिनिस्टर्स परफॉर्म नहीं करेंगे तो इमरान खान उनको चेंज करेगा, उनको मौका देगा। इसमें ऐसा तो है नहीं कि बड़ा भाई वज़ीर आज़म है, छोटा वज़ीर आला है, समधी वज़ीर ख़जाना है। हमारे यहाँ तो रिश्तेदार नहीं है। जो परफॉर्म करेंगे रहेंगे, नहीं करेंगे जाएंगे। तो जहाँ उनको अच्छे लोग लगेंगे उनको वो एडवाइज़र रख सकते हैं। कुछ भी मावराए आइन नहीं हो रहा। तो मैं हैरान हूँ लोग परेशान क्यों हो रहे हैं। अबरार भाई, चैरिटी इवेंट्स के अलावा कुछ सियासी मीटिंग भी यहाँ पे आप करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ एक चैरिटी के लिए आया था और वो चैरिटी का मकसद, मैं आज आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि इसको हम चैरिटी ही रहने दें तो ज़्यादा बेहतर है। बिकॉज हमारा मकसद ही ये था कि आज हम कैंसर हॉस्पिटल जो सहारा का लाइफ ट्रस्ट बना रहे हैं उसके लिए फंड्स इकट्ठे करें। जिन लोगों ने सपोर्ट किया उनका शुक्रिया भी, और मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आकर यहाँ पे इस प्रोग्राम को भी एडवर्टाइज। ये है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने कहा था कि हम तमाम लूटा हुआ पैसा जो है वो पाकिस्तान लेके वापस जाएंगे। अभी तक कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने कोई रिकवरी की हो। सारे चोर डाकू जो है वो लंदन में आ रहे हैं, उसके ऊपर आपने कोई एक्शन नहीं लिया। आप ये भी तो देखें ना कि टाइम लगता है इन चीज़ों पे। फालूदे वालों के अकाउंट्स पकड़े गए हैं, अरबों रुपए के ऐसे जाली अकाउंट्स पकड़े गए हैं, बड़ा कुछ सामने अभी आ रहा है। अभी तो 62 अरब की करप्शन वाले जो इनके पुराने साबका वज़रा थे, जिनमें एहसन इकबाल भी सरे फहरिस्त है, सारे अंदर होंगे। अभी देखते जाए होता क्या है। टाइम मैं वही कहूँगा 5 साल के लिए मुंतखब किया था, तो अभी इतनी जब लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। बिलखसूस नून लीग वालों से मैं कहूँगा कि सब्रुन जमीलुन। शेफील्ड में पाकिस्तान पीटीआई के उहदेदारान का इजलास हुआ, जिसमें आइंदा होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर मुशावरत की गई। तफसीलात आसिफ कुरैशी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेफील्ड का एक अहम इजलास मुनक़द हुआ, जिसमें पार्टी के साबिक ओहदेदारों और मेंबरान ने शिरकत की और साबिका 2 साला कारकर्दगी का जायजा लिया। साबिक सदर पीटीआई यूके रियाजुल हसन और साबिक जनरल सेक्रेटरी बासित शाह के अलावा पीटीआई यॉर्कशायर एंड एम्बरसाइड के सदर ताहिर अयूब और सीनियर रहनुमा शर्जील मलिक समेत शुरका ने पार्टी की कामयाबी में अहम किरदार अदा करने वालों को सराहा। इस मौके पर पीटीआई यूके की इंटर पार्टी इलेक्शंस में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला भी किया गया। इजलास में मास्टर औरंगजेब खान, राजा ज़हूर, इलियास खान, मोहम्मद निसार, शमरेज हुसैन, चौधरी नज़ाकत, सुगीर हुसैन, चौधरी रमज़ान, मोहम्मद इश्तियाक, चौधरी मसूद, अनीस रज़ाक और फैसल महमूद ने शिरकत की। ड्रामा निगार और कॉलम नवीस अमजद इस्लाम अमजद ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उर्दू का मेयार निस्बतन कमज़ोर है। बरतानिया और पाकिस्तान में भी उर्दू की तरवीज के लिए मज़ीद काम करने की ज़रूरत है ताकि आइंदा आने वाली नस्लें हमारी ज़बान से जुड़ी रहें। वो लंदन में ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन रवान से बातचीत कर रहे थे। आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त लंदन में अमजद इस्लाम अमजद साहब मौजूद हैं, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। अब इनसे पूछते हैं कि बरतानिया के अंदर उर्दू की तरवीज के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारी आने वाली नस्ल है वो उर्दू से जुड़ी रहे। असल में बात ये नहीं, ये मसला जहाँ तो यकीनन है, मगर अब ये मसला पाकिस्तान में भी है। हम इंटरनेशनल शहरी बनने के शौक़ में हम लोग नेशनल शहरी बनना हमने छोड़ दिया है। तो ये मसला जो है ये पाकिस्तान में भी है और यहाँ भी है, और इसकी बुनियाद यही है कि जिस तरह यूरोपीय कौमें करती हैं कि बच्चों को 3 से 10 साल की उम्र के दरमियान अपनी ज़बान और कल्चर का बूटा उनके अंदर लगाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यही तरीका है कि हम वापस लाएं, जैसे हमारे यहाँ लाइब्रेरियाँ होती थी, बज़्म अदब होती थी, इस तरह की बच्चों को लैंग्वेज जो है वो सिखाएं। क्योंकि जब तक हम अपनी तरफ से अपने निज़ाम में बच्चों को नहीं लाएंगे, बच्चों का गालिबन इसमें कोई इतना कसूर नहीं है कि वो नहीं लिख पढ़ रहे हो। सर, आपके पूरी दुनिया में शागिर्द फैले हुए हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ, मुझे फ़ख्र है इस बात पे। लेकिन हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं आपसे कि जो हमारे मीडिया हाउसेज हैं, अब देखा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर उर्दू का मेयार बहुत कम है।
जो कि प्रिंट मीडिया में पहले होता था, इस हवाले से हमें थोड़ा सा गाइड करें, हमें क्या करना चाहिए कि हमारा उर्दू का म्यार भी बुलंद हो और लोगों को हम कुछ उर्दू सिखा सकें। देखिए जी, सबसे पहली बात तो यह, जब तक आप ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देते किसी चीज़ को तो वो प्रॉस्पर नहीं करती। हमें, हमारी नस्ल जो थी, हम लोग रेडियो के बने हुए हैं। रेडियो में आप देखें सूफी तबस्सुम साहब बैठे होते थे, अखलाक अहमद देलवी बैठे होते। रेडियो से जो लफ्ज़ आता था वो एक स्टैंडर्डाइज्ड मयारी लफ्ज़ होता था। अब हमें कौन रोकता है कि हम ये जो चैनल्स हैं इन पे एक लैंग्वेज को सही बोलने का तरीका, सही लिखने का बनाएं। लेकिन मुसीबत ये है कि ज़्यादा चैनल जो है इस वक्त, या मीडिया, वो सेठों के हाथ में आया हुआ है। सेठों के लिए ये ज़बान या कल्चर, एस्थेटिक्स, एथिक्स जिसकी हम बातें कर रहे हैं, वो उनकी प्रायोरिटी में बहुत लो है। मेरे ख्याल में अगर उस प्रायोरिटी को आप कर लेंगे तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से खबर यह है कि वेनेज़ुएला में ऑपोजिशन की जानिब से हुकूमत गिराने की कोशिश नाकाम। सदर निकोलस मदुरो ने मुल्क छोड़कर क्यूबा भागने की तरदीद कर दी है। सरकारी टीवी पर खिताब करते हुए कहते हैं बगावत नाकाम बना दी है, फौज उनकी वफादार है। वेनेज़ुएला का सियासी बहरान मजीद संगीन हो गया। अमरीकी हिमायत याफ्ता अपोजिशन रहनुमा जॉन गाइडो ने खुद को मुल्क का सदर बनाने का ऐलान किया और दावा किया कि अब फौज भी उनके साथ है। इस मौके पर उन्होंने अपने हामियों से सड़कों पर आने की अपील भी की। गाइडो का वीडियो सामने आते ही मुल्क भर में झड़पों का सिलसिला शुरू हो गया। मुताद्दिद मकामात पर फौजियों ने ताकत के जोर पर मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश भी की। अपोजिशन रहनुमा के ऐलान के कुछ घंटों बाद सदर निकोलस मदुरो सरकारी टीवी पर नमूदार हुए। इस मौके पर उनके हमरा फौजी अफसरान भी बैठे थे। उनका कहना था कि मुल्क में बगावत नाकाम बना दी है। तुर्की के जामिया इस्तांबुल के शोबा उर्दू ने शायर मशरिक अल्लामा इकबाल और तुर्क शायर मोहम्मद आकिफ अरसुए को खिराज तहसीन पेश करने के लिए सम्पोजियम का इनेकाद किया, जिसमें मेहमान खुसूसी आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान थे। तकरीब में पाकिस्तानी सफीर मोहम्मद साइरस सज्जाद काजी और तुर्क असातिज़ा ने भरपूर शिरकत की। तफसीलात के लिए देखिए मोहम्मद आतिफ बट की ये रिपोर्ट। इस्तांबुल में तुर्की की जंग आज़ादी के 100 साल मुकम्मल होने पर जामिया इस्तांबुल के शोबा उर्दू ने 29 और 30 अप्रैल को एक बैनुल अक़वामी सिम्पोजियम का इनेकाद किया, जिसका मौजू मशरिक के दो अजीम शायर मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद आकिफ अरसुए थे। तकरीब का आगाज दोनों ममालिक के कौमी तरानों से हुआ। सदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर सरदार मसूद खान तकरीब के मेहमान खसूसी थे। इस मौका पर उन्होंने खिताब करते हुए शायर मशरिक और तुर्क कौमी शायर मोहम्मद आकिफ अरसुए के हालात जिंदगी और शायरी के नुमाया पहलू उजागर किए। सदर आज़ाद कश्मीर ने पाक तुर्क ताल्लुकात पर भी इजहार ख्याल किया। तुर्की के हब्दुल अजीज और कौमी शायर मोहम्मद आकिफ और पाकिस्तान के कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के ऊपर इस मुश्तरका कॉन्फ्रेंस के ऊपर मुंतज़मीन को मुबारकबाद देता हूँ। तकरीब में तुर्की के लिए पाकिस्तान के सफीर मोहम्मद साइरस सज्जाद काजी, डायरेक्टर जामिया इस्तांबुल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आक, शोबा अदबियात के डीन डॉक्टर हयाती देलवी, जामिया इस्तांबुल में शोबा उर्दू के चेयरपर्सन डॉक्टर जलाल सोईदान और शोबा उर्दू के प्रोफेसर डॉक्टर खलील तोकर भी शरीक हुए। पाकिस्तान, तुर्की और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले दानिश्वरों और अदबी शख्सियात ने भी तकरीब में शिरकत की और तहकीकी मुकाले पेश किए। वाक़ईतन आप हजरात की हमारी इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ आवरी हमारे लिए बास फ़ख्र और बास इज़्ज़त अफसाई है, इसलिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। ये अमर काबिल तवज्जो है कि अल्लामा इकबाल और मोहम्मद आकिफ अरसुए के यहाँ बहुत सी मुशाबहती पाई जाती है। मिसाल के तौर पर दोनों शायरों की तारीख़ पैदाइश में और तारीख़ वफ़ात में 2-2 साल का फ़र्क है और आकिफ की पैदाइश 18
1873। इस मौके पर मेजबानों की जानिब से सदर आजाद कश्मीर को 1915 में इस्तांबुल में शाया होने वाले उर्दू रोजनामे अखुवत की यादगारी कापी भी पेश की। शुरका ने तकरीब के मुंतजिम प्रोफेसर डॉक्टर खलील तोकर और जामिया इस्तांबुल के शोबा उर्दू के चेयरपर्सन डॉक्टर जलाल सोईदान को उनकी उर्दू के लिए खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया। यूनानी दारुल हुकूमत एथेंस में होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट में यूनान भर से मुख्तलिफ टीमों ने शिरकत की। फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी सिफारत खाना पाकिस्तान से एडिशनल FIA डायरेक्टर सफ़ीउल्लाह जोखियो थे, जिन्होंने शानदार खेल पेश करने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में सालाना एथेंस चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें यूनान भर से मुख्तलिफ क्रिकेट टीमों ने शिरकत की। मैच का आगाज तिलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी सिफारत खाना पाकिस्तान से एडिशनल FIA डायरेक्टर सफ़ीउल्लाह जोखियो थे, जिन्होंने शानदार खेल पर खिलाड़ियों को खूब दाद दी। फाइनल मैच को देखने के लिए पाकिस्तानी कम्युनिटी के शायकीन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। दोनों टीमों की तरफ से शानदार खेल का मुजाहरा किया गया, जिस पर शायकीन ने दिल खोलकर दाद दी। मैच के अख्ताम पर मेहमान खुसूसी सफ़ीउल्लाह जोखियो ने दोनों टीमों में ट्रॉफियां और शानदार खेल पेश करने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर ने कहा कि वो ताउन पर सिफारत खाना पाकिस्तान यूनान के बेहद मशकूर हैं और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान मीडिया के ताउन से और पाकिस्तान एम्बेसी और गवर्नमेंट हमें किसी न किसी मसले को हल करने की कोशिश करेगी और आइंदा हमें कोई बेहतर सहूलियात मुहैया करें। इस मौके पर शुरका ने कहा कि यूनान में बेहतरीन पाकिस्तानी खिलाड़ी सहूलियात की अदम फराहमी पर शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। और अब कुछ एंटरटेनमेंट। 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए बावसूख वेबसाइट 92newshd.tv। तो देखते रहिए 92 न्यूज़।